जिसे है झूठ बंधन। श्री अचरज जी श्रीनाथ जी चार भुजापेश्वर, सूफी संतों की धरती में आना एक ईश्वर। वेद तोम के ज्ञान तीर्थ का सागर शतवंदन, यहाँ साधना रत प्रतिभाए ज्योतिर्मंद बने। राष्ट्र धर्म का स्वर विजयी हो महिमावंत बने। मुक्त गगन में आदर्शों की पुण्य ध्वजा फहरे। जनमानस में ज्ञान ज्योति का दिव्य प्रकाश भरे। ज्ञानदायिनी मूर्ति अंत महिमा का अभिनंदन। युवा शक्ति हो सत्यनिष्ठ संकल्पित अंतर्मन। ज्ञान तीर्थ का सागर शतवंदन। शील ज्ञान विज्ञान कर्म संगम को कोटि नमन। कोटि नमन, कोटि नमन, कोटि नमन। Good afternoon to all. I would like to request Professor G.S. Rathore sir to kindly shower your blessings for the start of the event. Okay. Are you listening me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Good evening to all. First of all, I would like to congratulate to the head department of chemistry, Dr. Jyoti Chaudhary, who has organized this such type of beautiful, wonderful webinar on a such beautiful topic, which is urgently needed in these days. Then I would like to also welcome to our today's guest, Dr. Astha Dhingra, which is a clinical psychologist at the Polaris Hospital and Jeevan Multidisciplinary Hospital at Gurgaon, and assistant professor in SCT University. And as I know that she has worked well on the mental health journey from illness to wellness and the COVID-19. First of all, before starting this webinar, I want to communicate you that our Honorable Vice Chancellor is very, very keenly interested at what we are doing in these days. She's actually very, 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 very interesting about the students. That these students during these days, the students are suffering a lot, and what the things are happening with their parents and the surrounding area. And in this situation, he has already donated 1.1 crore rupees to the governor's fund for the welfare of the persons which are feeling bad nowadays in this upper state. And she is also ordered to buy a ambulance for the purpose of students in the university. And she has already discounted the fees of the students in the previous year session, that's meant 2020 and 21. And she is also thinking about give more discount of the students who have lost their parents in this pandemic. In this situation, it is our duty to communicate our students how they should live in these days, and how we think positive, how can we contribute our society, and how we can contribute to our parents and the surrounding areas. That is a very, very urgently needed in these days. So I invite Dr. Dhingra to say something about this situation to our students. So over to the Shikha Agarwal, which is continuing this program. Okay, over to the Shikha Agarwal. Thank you so much, sir.
Your valuable suggestions and your valuable speech has funded a lot to students. Now I would request Dr. Jyoti Chaudhary, Head Department of Chemistry, to please welcome the program and give a worthy note. Thank you, Shikha. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. Hello, everyone, and very good morning, and welcome to this today's session. First of all, I would like to convey my sincere thanks to our mentor and our motivator, Professor America Singh, for his blessings. Actually, due to his tight schedule, he could not attend this webinar, but he conveyed his blessings to us. I would like to welcome our respected Dean, Faculty of Science, Professor G.S. Rathore sir, for giving their valuable time for this webinar. And I also welcome our today's speaker, Mrs. Astha Dhingra. She is a well-known psychologist and a youth icon of NCR. I also welcome all our faculty members, our students and their parents. Dear students, we organized this webinar in this pandemic situation to help out our beloved students and for you and your parents. And as our respected Dean sir told, I also like to inform you that if you had any problem, regardless your family, finance and academics, we all are. With me, Dr. Shikha Agrawal and all our faculty members are here to help out you. And you can contact us at any time and you can call us for any help, please. Now, one more thing I would like to share that a recorded version of this webinar will also be available on our university website. So some students who missed to attend this webinar can also watch this webinar after whenever they have a time. So now I request Dr. Shikha Agrawal to give a brief introduction of our respected speaker, Mrs. Astha Dhingra. Dr. Shikha, please. Yeah, thank you so much, ma'am. Thanks for nice welcome and informing the students about all the valuable suggestions and achievements that our Professor Honorable Vice Chancellor has discussed with our university. So I would like to firstly pay my sincere thanks to Honorable Vice Chancellor Sir, Professor America Singh, whose blessings and ideas have inspired us to organize such a fruitful program for the students, for the teachers, for the faculties, and for our educational family in such a pandemic situation. I would also like to give my big thanks and welcome to Professor G.S. Rathore sir, Head Department of Chemistry, Dr. Jyoti Chaudhary ma'am, and my faculty members, dear students. As we all are aware that we all are in a tough period of life where corona and negativity in life has harassed everyone. Every part has been harassed due to the corona. Someone has lost their family members and some are in very pandemic situation bearing a loss of health and many more. So in order to combat negativities, sadness and fear, we have to generate positivity in us, in our family and everywhere. Today, Department of Chemistry, University College of Science, Mohanlal Sukhadia University has organized an expert talk by Mrs. Astha Dhingra. The topic is looking at the positive side of life. So I am introducing Astha Dhingra ma'am. She is an assistant professor in SGT University, Gurugram, and clinical psychologist in Polaris Hospital and Jeevan Multi-Speciality Hospital, Gurugram. She is a certified soul coach, EFT practitioner, graphologist, and psychometrician. She is a member of editorial board of International Journal of Indian Psychology, India. She is credited with plus 20 papers in national and international journal. She is also editor of 2 books. First book is Mental Health Journey from Illness to Wellness. And second is COVID-19, a compilation of its impact and solution. And many more. There are so many achievements of ma'am that we can't discuss on this single platform.
So, ma'am, please shower your achievements and experiences to our students. So, over to you, ma'am. Thank you so much for this wonderful welcome. I am overwhelmed with this welcome itself. Rathore ji, Jyoti ji, Shikha ji, thank you so much for inviting me on this platform and letting me share my own experiences. Because मैं पिछले तकरीबन 1.5 साल से कोविड ड्यूटी पे हूँ. ये पहला वेव है मेरा जिसमें इमरजेंसी पर्पस की वजह से शायद पीपीई किट पहनकर, मास्क लगाकर और वो शील्ड पहनकर मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ रहा है. बट पिछला पूरा वेव, पूरा का पूरा लॉकडाउन, शायद ही मेरे घर वालों ने मेरा चेहरा देखा होगा, बिकॉज आकर घर वालों के बारे में सोचते हुए भी पहले नहाना होता है और बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं जो करने होते हैं ताकि सब सेफ रहें, आपके घर में भी सब सेफ रहें. सो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह के एक्सपीरियंसेस को हम लोगों तक पहुंचाने में एक समर्थ रखते हैं और समझा पाते हैं कि एक्चुअल सिचुएशन बाहर क्या है. बिकॉज हम इस टाइम हम आज टॉपिक के भी जो बात कर रहे हैं, लुकिंग एट द पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ. पॉजिटिव साइड शायद मेरे हिसाब से हम तब देख पाएंगे जब हम नेगेटिव को समझ पाएंगे. और मेरी आज ये जो मैं देख पा रही हूँ, 76 people in total including me have joined. All these 76 people, अगर आप लिटरली इस वेबिनार से थोड़ा सा भी बेनिफिट लेना चाहते हैं, जस्ट बी एक्टिव. अगर वीडियोस ऑन नहीं करनी कोई दिक्कत नहीं है, सारे हमारी तरह मेकअप करके नहीं बैठे होते हैं. बट अगर आप लिटरली इस सेशन से कुछ समझना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, अपने चैट्स को एक्टिव रखिए और साथ के साथ जो क्वेश्चंस आए वो पूछते रहें. क्योंकि मैं भी काफी सारी चीजें पूछने वाली हूँ, बताने वाली हूँ. तो वो एक्टिविटी जब तक नहीं होगी, पहले मैंने सोचा था, इवन मैंने शिखा मैम से भी डिस्कस किया था कि मैं प्रेजेंटेशन बनाती हूँ, फिर मैंने लगा बहुत बोरिंग हो जाता है वो. सो इट्स बेटर दैट वी आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर. किसी की कोई पर्सनल लेवल पे प्रॉब्लम रही हो, कुछ डिस्कस करना चाहते हो, किसी पर्टिकुलर मुद्दे पे बात करना चाहते हो, तो वो आप अपने चैट सेक्शंस में डाल सकते हो. मैं उन क्वेश्चंस को रीड करके साइमल्टेनियसली भी आपको पूरी कोशिश करूंगी एज अ साइकोलॉजिस्ट जो बेस्ट आंसर्स बन सकेगा वो दूंगी. राइट. सो थोड़ा सा इस सिचुएशन के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि ये सिचुएशन क्या चल रही है. इट इज नॉट दैट सिंपल जितनी हमें लगती है. हमें लगता है कि बाहर डेथ्स बहुत ज्यादा हो रही हैं, बाहर सिचुएशन इस टाइम वर्स्ट है. वर्स्ट कहें तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिल रहे, हॉस्पिटल में बेड्स नहीं मिल रहे, और बहुत सारी और चीजें भी हैं जो हो रही हैं. कितने लोगों को ऐसा लगता है कि ये वाकई में सिचुएशन है बाहर? हाउ मेनी ऑफ यू जस्ट थिंक? चैट बॉक्स एक्टिव. यस, Nitesh raised hands. Okay, perfect. Nikita, Shruti, thank you so much guys for replying. That shows how active we are and how much willing we are to understand this webinar. Perfect. So, of course, yes, keep that on till I am continuing my speech also. ये चलते रहना चाहिए, ये chat box पूरा time active रहना चाहिए. दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ वो ये है कि हमें ऐसा लगता है कि भारत, बट क्या ये सिचुएशन सिर्फ मेडिकली ऐसी है, सिर्फ डॉक्टर्स की स्कैर्सिटी के कारण या फैसिलिटीज की स्कैर्सिटी के कारण ये सब हो रहा है, या कोविड इतना ज्यादा बढ़ रहा है, या और भी रीजंस हैं जिसकी वजह से हम बार बार अस्पताल जा रहे हैं, भर्ती हो रहे हैं और इस स्कैर्सिटी को क्रिएट कर रहे हैं? क्या सिर्फ कोविड एक रीजन है जिसकी वजह से हम हॉस्पिटल्स जा रहे हैं? क्या सिर्फ डॉक्टर्स की कमी की वजह से डेथ्स हो रही हैं? डॉक्टर की वजह से कमी से डेथ हो रही. ओके. डॉक्टर पूरा इलाज नहीं करते, गरीबों को लूटते हैं. एक बेड का 2,000 रुपए, 20,000 रुपए चार्ज ले रहे हमारे यहाँ मैम. कल वहां को पकड़ा गया हॉस्पिटल के अंदर. ठीक है. ओके, लापरवाही, many reasons involved. There are many reasons. Improper management,
परफेक्ट। नाउ हमने बचपन से, जब से हम बड़े हो रहे हैं, जब से हमने होश संभाला है, हम एक कहावत अक्सर सुनते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति एक उंगली किसी की तरफ उठाता है तो उसे याद रखना चाहिए कि 3 उंगली आपकी तरफ वापस आ रही है ना। सो इससे मैं ये नहीं कहूंगी कि गलती सारी हमारी है, ऑफ कोर्स सारी गलती हमारी नहीं है। डॉक्टर्स की भी बाहर बहुत ज्यादा कमी है। इस सिचुएशन को समझने के लिए हमने पर्सनल लेवल पे कितने एफर्ट्स किए, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सब सारी अगर आप सिचुएशन को समझने की कोशिश करें, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं 1 साल से 1.5 साल से इस सिचुएशन के अंदर हूं। आप जितनी इंफॉर्मेशन आपके पास है वो शायद मीडिया की वजह से आई होगी, वो शायद कुछ लिटरेचर पढ़ के आई होगी, न्यूज़पेपर्स पढ़ के आई होगी, इंस्टाग्राम देख के आई होगी, राइट। आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन वो है जो सिर्फ मीडिया आप तक पहुंचा रहा है, आपके पास फैक्ट्स नहीं है। आप अस्पताल जाकर नहीं देखते रोज कि क्या सिचुएशन है, और इस वजह अस्पताल जाकर देखते हैं, देख के आए आंखों से मैम। हाँ सर, मैं मानती हूँ आपकी बात को, पर आप वो एक शख्स है इस मीटिंग के 77 लोगों में से जिन्होंने शायद ये विटनेस किया, और मैं आपके ऊपर भी अभी आती हूँ और आपको भी आपके सवालों का जवाब दूंगी। ऐसा हो रहा है, हम मानते हैं, ये सारी सिचुएशंस बन रही है, ये भी हम मानते हैं। ओवरचार्ज किया जा रहा है, ये भी हम मानते हैं, पर हम बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जिसकी वजह से मैं कहूंगी कि हम कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं कि इस सिचुएशन को हम कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कैसे हम रिस्पॉन्सिबल हैं इस सिचुएशन के लिए, ये सिचुएशन कैसे कम की जा सकती है। जब ये वेव 2 आई थी तब इतनी हड़बड़ी थी कि आप एक दिन में हजारों डेथ्स हो रही थी। द डेथ रेट हैज डिक्रीज्ड, और ये एक अच्छी बात है, डेथ रेट डिक्रीज हो चुका है काफी हद तक। सिचुएशन संभाली जा रही है आज की डेट में, और चीजों पर काम किया जा रहा है। आप सब इस चीज को मानते हैं कि ये जब सिचुएशन आज से 1 साल पहले आई थी, तो जितना शायद आपको पता था इस सिचुएशन के बारे में, उतना ही शायद डॉक्टर्स को पता था। एक नई बीमारी कहां से आई किसी को नहीं पता। मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स से बात करने की कोशिश करी, जिसके दौरान ये समझ में आया कि मेडिकल की बुक्स में भी कोरोना वायरस के बारे में सिर्फ 17 या 18 लाइनें लिखी हुई हैं पूरी की पूरी किताब में। सो इतना ज्यादा प्रेवलेंस इस डिसऑर्डर का, इस डिजीज का नहीं था, तो डॉक्टर्स को भी उतना ही टाइम लगा इस सिचुएशन को समझने में। और जब हम कहते हैं ना डॉक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतनी सी है डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी, इससे ज्यादा बड़ी नहीं है। देयर आर हैंडफुल ऑफ पीपल इन द एंटायर इंडिया जो एक डॉक्टर्स कम्युनिटी बनाते हैं, राइट। तो उनके ऊपर कितना बर्डन है, एक ह्यूमन कैपेसिटी से कितना बढ़कर कौन काम कर रहा है, ये चीजें भी देखनी बहुत जरूरी है। बिकॉज उन्हीं के बीच में वो डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं जो शायद ओवरचार्ज कर रहे हैं या मैल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। और मैं ये भी आपको दावे के साथ कह सकती हूँ, आप में से ही, आप जैसे ही ग्रुप में से निकल कर आए हैं वो लोग, तो ये मैल प्रैक्टिसेस जो हो रही हैं वो भी तो हम में से ही कोई एक कर रहा है ना। ये समझना भी, ये एंगल देखना भी बहुत जरूरी है, क्यों हमारा वैल्यू सिस्टम इतना वीक हो गया। और जब मैं बार बार घुमा फिराकर सिर्फ एक ही निष्कर्ष पे आऊंगी, हर सिचुएशन गोल घूमकर सिर्फ एक ही चीज पे आएगी, हम कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस सिचुएशन को कम करने में। अगर आज की डेट में आप कहें कि सिचुएशन इतनी बुरी है कि बाहर कुछ नहीं हो सकता, बहुत कुछ हो सकता है अगर आप सेल्फिश हो जाएं। एंड व्हेन आई से सेल्फिश, आई मीन टू से सिर्फ अपना ध्यान रखें। अगर आप घर के 4 लोग हैं तो आप सिर्फ अपना 4 लोगों का ध्यान भी रख लें, तो आप देखेंगे हर घर सुरक्षित है। नाउ कमिंग ऑन टू योर थिंग्स,
मैं अगर चैट सेक्शन से देखूं, यस, सो मच ऑफ नेगेटिव न्यूज इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। मीडिया को समझना अपने आप में अपने अंदर एक पॉजिटिविटी लेके आना है, क्योंकि मीडिया जिस तरीके से प्रेजेंट, आई होप आई एम ऑडिबल एंड आई एम विजिबल टू ऑल ऑफ यू। Yes, ma'am. Yes. हो रहा है तो मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा था। Actually, Dr. Shilpa Agarwal, please stop presenting. आप प्रेजेंट ना करें प्लीज, उससे डिस्टर्ब हो रहा है। Okay, we are all are hearing now. Yeah, ma'am. Okay, Please okay. continue. Please Sure. continue. Okay, thank you. So, मीडिया से जो जनरेट हो रही है इंफॉर्मेशन, उसमें से हमें कितनी लेनी है, कितनी इंफॉर्मेशन नहीं लेनी है, वो एक सेकेंडरी क्वेश्चन है। पॉजिटिविटी लाने के लिए मेरा आप लोगों से सबसे पहला सवाल ये है, व्हाई आर वी रिलाइंग ऑन मीडिया? हम न्यूज के लिए रिलाई ही क्यों कर रहे हैं? हमारे पास WHO है, हमें पता है कि ये इंफॉर्मेशन अगर हमें बच्चों रिलेटेड कुछ देखना है या उनके रिलेटेड समझना है, सपोज हमें अब ये समझना है जो कहा जा रहा है कि वेव 3 बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभावी होगी, वहां पर असर करेगी और जितनी भी चीजें खराब होंगी, जो कि कहा जा रहा है कि नवंबर तक वेव 3 आ जाएगा, अगर इट इज समथिंग रिलेटेड टू द स्टूडेंट्स, टू द किड्स, टू द चिल्ड्रन, तो हम उसमें आज तक, NDTV, रिपब्लिक टीवी या इन सब न्यूज चैनल्स का वेट क्यों कर रहे हैं हमें इंफॉर्मेशन देने के लिए? हमें पता है बच्चों रिलेटेड यूनिसेफ नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, उस पे जाइए, उस पे आपको अपडेट्स मिलेगा। जितनी भी गवर्नमेंट साइट्स हैं वहां पर आपको एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन जब मिल रही है, तो हम इन चीजों पे रिलाई क्यों कर रहे हैं? वहां जब एक्चुअल डेटा हमें मिल रहा है तो हम इन चीजों पे रिलाई क्यों कर रहे हैं? Why are we relying on the number of deaths that has happened in our state or in our country? हमें उससे मिलेगा क्या? My entire question goes again back to you. हम न्यूज सुनते हैं, हम 3-3 घंटे न्यूज के आगे बैठे हैं, हमें क्या मिला? What have we got out of it? कोई सेटिस्फैक्शन मिली सुनकर? कोई तसल्ली मिली कि this is very good? या हाय कितनी ज्यादा बुरी सिचुएशन है, हाय तौबा हो रहा है बाहर तो, या देखो डॉक्टर्स की क्या हाल हो रखी है, डॉक्टर्स की कम्युनिटी कितनी बदनाम हो रखी है। सो हम क्या कर रहे हैं? हम एक्चुअली में इन सारी चीजों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं बहुत ज्यादा नेगेटिवली, और हम अपना थॉट प्रोसेस नेगेटिव करते जा रहे हैं। एंटायरली सिर्फ अपना थॉट प्रोसेस हम नेगेटिव करते जा रहे हैं। सो यहां पर बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं इन चीजों को, इन हालातों को बेटर समझने के लिए, बेटर करने के लिए। सबसे पहले हमारे को ये समझना बहुत जरूरी है, आप सब केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं तो रिएक्शंस, बॉडी का रिस्पॉन्स, थोड़ी बहुत साइंस से बैकग्राउंड रखते हैं तो थोड़ा बहुत आपको बायोलॉजी पता होगा। जब भी कोई वायरस, कोई चीज हमारी बॉडी के अंदर इनएप्रोप्रिएटली जाती है, राइट? अगर हम गलत खा लेते हैं, गलत पी लेते हैं, या कुछ भी और ऐसी हरकत होती है जहां हमारी बॉडी को कोई हार्म पहुंचता है, वहां बाय डिफॉल्ट ये बॉडी का मैकेनिज्म है कि बॉडी बुखार दिखाकर, खांसी दिखाकर, लूज मोशंस दिखाकर, या कॉन्स्टिपेशन दिखाकर, या स्टमक अपसेट दिखाकर कुछ ना कुछ ऐसा सिम्टम आपको बॉडी दिखाती है जिसकी वजह से आपको समझ आ जाता है कि बॉडी के अंदर कुछ गड़बड़ है, एंड देन वी रीच टू द डॉक्टर टू अंडरस्टैंड, एंड देन वी टेक द मेडिसिन अकॉर्डिंगली। ऐसा क्यों? बॉडी क्यों दिखाती है? हाँ जी, ऐसा क्यों होता है मैम? बॉडी क्यों दिखाती है? क्योंकि बच्चा बॉडी का मैकेनिज्म ही यही है, बॉडी ही दिखाती है। नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको मच्छर काट गया और आपको मलेरिया हो गया? आप तो नॉर्मल बुखार की दवाई खाएंगे। अगर आपको बुखार होगा तो आप बुखार की दवाई खाएंगे ना। आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि मलेरिया हुआ है कि डेंगू हुआ है? बॉडी ने आपको जवाब दिया है कि कुछ हुआ है, मेरे अंदर कोई वायरस आया है। वो कैसे पता चलता है? जब आपको कुछ बॉडी का सिम्टम होता है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं, दिखाते हैं, स्क्रीनिंग कराते हैं और आपको पता चलता है डेंगू है, मलेरिया है या नॉर्मल फीवर है।
और ये बहुत अच्छी भगवान की देन है हमारे को कि हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड कर देती है। सिमिलरली जिस तरीके से बॉडी इन चीजों के लिए रिस्पॉन्ड करती है, सिमिलर तरीके से बॉडी आपकी साइकोलॉजी को भी रिस्पॉन्ड करती है। अचानक से अभी मैं किसी एक व्यक्ति को अनम्यूट करके कुछ कहने के लिए कह दूं तो थोड़ी सी घबराहट होगी, थोड़ी सी चिंता होगी, पेट में थोड़ी सी ऐसे सेंसेशन सी होगी, हड़बड़ाहट होगी, शायद हम बात करते हुए थोड़ा सा तुतलाएंगे। ये बॉडी का ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है ये बताने का कि हम अंडर कॉन्फिडेंट हैं या हम ओवर कॉन्फिडेंट हैं या हम अनप्रिपेयर्ड हैं या हमें थोड़ी सी एंजाइटी हो रही है। इसीलिए एग्जैक्टली इसीलिए बार बार जो कहा जा रहा है वो, अगर आप डॉक्टर्स की भी बात सुने, अगर आप कोई ऑथेंटिक साइट पे भी जाएं, बहुत से ऐसे दुनिया में लोग अभी बचे हैं या जिनको कोविड पॉजिटिव हुआ था उनको एसिम्प्टोमैटिक कोविड था, राइट? एसिम्प्टोमैटिक था, कोई सिम्टम नहीं आया बट पॉजिटिव थे और इन्फेक्शन भी था। उनकी रिपोर्ट्स में अगर आप उनका सीटी लेवल देखेंगे तो अप एंड डाउन आया होगा ना। इससे मेरा आप सबको समझाने का सिर्फ ये नजरिया है कि जब भी डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स देखें, आप बाकी की सारी चीजें देखें, एक बहुत कॉमन पॉइंट है जो बार बार कहा जा रहा है, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखें। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो ये सारी चीजें आपको अफेक्ट उस लेवल तक नहीं करेगी जितना उस व्यक्ति को कर रही है जिसके साथ कोई कोमॉर्बिडिटी है। कोमॉर्बिडिटी बोले तो कोई ना कोई डायबिटीज, शुगर का इशू, हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर या किसी और तरह की कोई बीमारी है, उन लोगों को ज्यादा इम्पैक्ट कर रही है, क्योंकि पहले इस बीमारी के सिम्टम्स को समझें और इसका इलाज साथ साथ उसके साथ करें जो ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग बीमारी है, लंबे समय से चल रही है। तो दो बीमारियों का इलाज एक साथ इस सिचुएशन में, इस पेंडेमिक सिचुएशन में कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो अगर हम सब सिर्फ अपना अपना इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करके रखें तो बहुत बड़ी चीज नहीं है, मुझे लगता है। सो यस, नाउ I have received a very good question, two important questions. If you are in place of students, how will you take care and how can we boost our immunity? अगर आप देखें बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, कुछ कंसेप्ट्स जो मैं आपको यहाँ इन चीजों को समझाने के लिए डिस्कस करना चाहूंगी। पहला कंसेप्ट आई होप आप सबने पढ़ा होगा, इसे हम कहते हैं मास हिस्टीरिया। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है। आप सब लगभग कभी ना कभी जिंदगी में सैर करते होंगे, रनिंग करते होंगे। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री दैट रनिंग करते थे, सैर करते थे? जस्ट कीप टाइपिंग यस। परफेक्ट। सो जब हम रनिंग करते थे तो क्या आपकी हार्ट बीट, अगर रनिंग करके 2 मिनट के लिए रुके हैं तो क्या आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है? आपका बीपी, आपका पल्स रेट बढ़ेगा या उतना ही रहेगा जितना आपका नॉर्मल वॉकिंग के टाइम पे या जितना इस टाइम होगा? यस, बढ़ेगा। इट विल बी हाई, इट इंक्रीजेस। सो उस टाइम पे सपोज अभी बहुत लोगों ने ये भी लिखा कि आज भी वो रनिंग करते हैं, तो क्या इस टाइम पे ये कहना कि आपका बीपी हाई हो गया है, आपको ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जरूरत है, आपको तो कोविड हो गया है, आपकी तो पल्स रेट बहुत ज्यादा हाई आ रही है, क्या ऐसा कहना ठीक होगा? नहीं। नहीं। क्यों? आपकी तो हार्ट रेट तेज है। सारे डॉक्टर्स कह रहे हैं ऑक्सीमीटर लगा के रखिए, अगर आपका पल्स ऊपर नीचे आ रहा है तो इमीडिएटली डॉक्टर को रिपोर्ट कीजिए, इमीडिएटली ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स को अपने पास ले लीजिए, सिलेंडर्स को ले लीजिए। पर मैम वो तो शॉर्ट टाइम के लिए था ना। तो क्या शॉर्ट टाइम के लिए था आपका? तो मैम वो जो बीपी वगैरह बढ़ती है वो तो शॉर्ट टाइम के लिए बढ़ती है ताकि फिर वापस नॉर्मल हो जाती है, जैसे हम अपने आप को रेस्ट स्टेज में डालते हैं वैसे। एग्जैक्टली माय पॉइंट, वेरी वेल सेड बाय मनीष। थैंक यू मनीष, आपने ये स्टेटमेंट दी। समझने की यहाँ पर ये जरूरत है कि इस मौसम में
इस पर्टिकुलर मौसम में पहले भी बुखार होता था, पहले भी खांसी होती थी, पहले भी मलेरिया डेंगू होता था, पहले भी 104 बुखार होता था, और बहुत सारी ऐसी बीमारियां थी जो इस मौसम की हैं और इस मौसम में आती हैं। प्रॉब्लम ये है कि अब हमें छोटी सी भी छींक आती है या हमें थोड़ा सा भी बुखार होता है, हम फट से डॉक्टर के पास भाग जाते हैं, हम वेट नहीं करते, और सबसे पहला थॉट जो हमारे दिमाग में आता है, कोरोना तो नहीं हो गया, कोविड टेस्ट करा लो। ये सबसे बड़ा रीजन है कि आज इंडिया के अंदर इन सारे रिसोर्सेज की इतनी स्कैर्सिटी है। मुझे आपके शहर का तो नहीं पता, बट दिल्ली, गुड़गांव में कोविड टेस्ट होने तक बंद हो चुके हैं, क्योंकि डॉक्टर्स की स्कैर्सिटी है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट की स्कैर्सिटी है। इतने टेस्ट होते हैं ऑन अ डेली बेसिस कि वो डॉक्टर्स टेस्ट करते करते पॉजिटिव हो चुके हैं। लैब्स बंद है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि घर में किसी एक को बारिश में नहाने की वजह से अगले दिन बुखार हो गया, तो कोविड तो हवा में था, नहाते नहाते शायद सांस में चला गया होगा, तो कोविड हो गया होगा। क्या जो मनीष ने अभी पिन पॉइंट किया कि थोड़े से स्पैन के लिए वो प्रॉब्लम रही, या थोड़े से टाइम के लिए वो हार्ट रेट हमारी बढ़ी, क्या हमने उसे 24 घंटे 48 घंटे के लिए मॉनिटर किया, या हम पहले ही पैनिक में आ गए? हम जनरली क्या गलती कर रहे हैं, हम अचानक से पैनिक में आ जाते हैं। अब समझने की जरूरत है, यहाँ हम केमिस्ट्री समझ चुके, हम बायोलॉजी समझ चुके, अब थोड़ी सी साइकोलॉजी समझते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है जैसे ही कोई सिचुएशन हमारे सामने आती है, हम एकदम से पैनिक में आ जाते हैं। पैनिक में आते ही सबसे बड़ी गड़बड़, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे डाइजेशन पे। अगर आप एक बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है, डॉक्टर हैमर ने दी थी। डॉक्टर हैमर ने एक बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी दी है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी जब भी आपको समय मिले उसको पढ़िएगा जरूर। उन्होंने काम किया था कैंसर के ऊपर, और ये देखा गया है कि जब वो कैंसर के ट्रीटमेंट को देख रहे थे, कैंसर भी इसी तरह एक वेव की तरह आया था। जब कैंसर नया नया आया था तो कैंसर का भी कोई इलाज नहीं था, पता नहीं था क्यों हो रहा है, अचानक फैल जाता था, और बहुत सारी ऐसी चीजें देखी गई कैंसर को लेके। तो कैंसर हालांकि इट्स नॉट अ वायरस वाली बीमारी, बट अगर आप दोनों चीजों को, दोनों थ्योरीज को रिलेट करो, जब नया नया कैंसर आया था और उसका इलाज ढूंढा जा रहा था, तो ये देखा गया था कि सबसे पहले कैंसर का जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ा था वो लंग्स पे पड़ा था। क्योंकि सबसे पहला थॉट क्या आता है जब भी किसी को हम उस समय ये न्यूज ब्रेक करते थे कि आई एम सॉरी आपको तो कैंसर है, सबसे पहला थॉट, मैं तो बचूंगा ही नहीं, मैं तो जिंदगी खत्म, मैं तो अभी जिया ही नहीं। तो ये सारे थॉट्स क्या करते थे, जब भी आपके दिमाग में ये थॉट आएगा एक अलग सी घबराहट होती है, और सबसे पहले आपकी सांसें तेज होती हैं। जैसे ही आपकी ब्रीदिंग इररिस्पॉन्सिबल हुई, इररेगुलर हुई, जैसे ही आपकी ब्रीदिंग इररेगुलर हुई, सडन इम्पैक्ट पड़ा आपके लंग्स पे। तो कैंसर को जब लंग्स आपके एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्ट या एक्स्ट्रा एक्सपैंड होंगे, बॉडी ऑटोमेटिकली उस चीज को भरेगी, और उस टाइम भरने के लिए आपकी बॉडी के अंदर सिर्फ कैंसर के वायरस थे, तो उन्होंने कैंसर के वायरस से बॉडी ने ऑटोमेटिकली जगह ले ली, तो लंग्स तक कैंसर पहुंच गया। सेकेंड वेव जब कैंसर की आई थी तो भी ये देखा गया था कि जो सेकेंड थॉट हमारा बना आफ्टर कि मैं मर जाऊंगा, उसके बाद जो सेकेंड थॉट आया था, जो जनरली अभी भी कोविड के केस में भी आ रहा है, वो भी यही है कि मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरे घर वालों का क्या होगा, घर का खर्चा कैसे चलेगा, और घर रिलेटेड। जिससे क्या प्रॉब्लम आती है, इसके बाद लंग्स के बाद इसने किस चीज को इम्पैक्ट करना शुरू किया, लीवर को। आपकी डाइजेशन खत्म हो जाती है, जीने की इच्छा खत्म हो जाती है, ये जानते हुए, ये मानते हुए कि और नहीं तो थोड़े दिनों में मैं मरने वाला हूं। सो ये सारी चीजें अगर आप देखें तो किसी ना किसी इलनेस के पैटर्न को हम इस कोविड सिचुएशन में भी एग्जैक्टली फॉलो कर रहे हैं।
यहाँ पर भी हम वही सब देख रहे हैं। पहले इसने लंग्स पे इम्पैक्ट करना शुरू किया। आज की डेट में अगर आप रिसर्च स्टडीज पढ़ते हैं तो कोविड आपके लीवर को इम्पैक्ट कर रहा है। हमारा खाना पीना बंद हो गया है, हमारी डाइजेशन, हमें अंदर गर्मी लगने लग गई है और बहुत सारे और नए सिम्टम्स निकल के आए हैं जो हमें इम्पैक्ट कर रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है? सिर्फ साइकोलॉजिकली अपने आप को हम इम्पैक्ट कर रहे हैं और हम अपने आप को कॉन्टिन्यूअसली एक एंजाइटी के सिचुएशन में लेके आ रहे हैं कि जैसे कोविड हुआ, बाहर अस्पताल तो है नहीं, बाहर डॉक्टर्स तो है नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स तो मिलेगा ही नहीं, अब मेरा क्या होगा, बस अब तो भगवान मुझे बुला रहा है। सो कटिंग इट शॉर्ट, प्रॉब्लम इज ये जितनी एंजाइटी, ये जितना फियर, ये जितना लो हम फील कर रहे हैं, ये सब साइकोलॉजिकली है, ये सब साइकोलॉजिकल लेवल पे है। सवाल आता है जब हमें समझ आ चुका है कि ये सब साइकोलॉजिकल लेवल पे है तो इसका करें क्या? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए? आई थिंक हमने वेबिनार ही शायद इसलिए रखा है कि करें क्या हम इसका। यस ओके, सबसे पहली चीज जो हमें करनी चाहिए अपनी इस नेगेटिविटी को हटाने के लिए और अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम ऑल सॉर्ट ऑफ न्यूज। न्यूज सुनना इमीडिएटली बंद कर दें। सबसे पहला सोल्यूशन है न्यूज सुनना बंद कर दें। व्हेन आई से न्यूज सुनना बंद कर दें, आपके पास और बहुत अच्छी चीज है जो आप न्यूज में भी सुन सकते हैं। कोविड रिलेटेड न्यूज बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि इससे कोई सुकून नहीं मिलेगा आपको कि बाहर कोई दवाई आ गई है या बाहर वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। जो भी होगा आपकी लिमिटेड कम्युनिटी के अंदर आप तक इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अगर वैक्सीन की भी बात करें तो आपकी सोसाइटी में कोई ना कोई आपको जरूर बता देगा कि XYZ जगह पर वैक्सीन लग रही है, प्लीज जाके लगवा लें। उसके लिए आपको न्यूज चैनल्स देखने की जरूरत नहीं है। कुछ समय तक न्यूज को अवॉइड करें जितना ज्यादा हो सकता है। किसी के भी फैमिली मेंबर अगर अस्पताल में भर्ती है या ऐसी सिचुएशन है जहां आप किसी को जानते हैं जो हॉस्पिटलाइज्ड है, प्लीज उनके साथ जो लोग हैं, जो अटेंडेंट है, सपोज किसी के फादर एडमिट है तो अगर बच्चा वहां है जो आपका फ्रेंड है, एक चीज उन्हें बहुत क्लियरली समझाएं। मैंने ये सिचुएशन खुद अपने आप से बहुत एक्सपीरियंस करी है हॉस्पिटल्स में जिनको मैं विजिट करती हूँ। ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, टोसिलाजुमैब इंजेक्शन नहीं मिल रहा, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा, ये आप लोग पेशेंट के सामने क्यों बताते हैं? पेशेंट इज ऑन द डेथ बेड एंड हम उसके सामने ही सारी कॉल्स उठा के बता रहे हैं कि नहीं हो पा रहा, अच्छा तेरे से भी नहीं हो रहा, ओहो मैं कहीं और पता करता हूं। ऑलरेडी द पेशेंट हैज लॉस्ट ऑलमोस्ट एवरी होप। ये बोल बोल कर और पेशेंट के सामने इस तरह की बातें कर कर हम उसका मोरल और डाउन कर देते हैं। सो ट्राई टू रिमेन पॉजिटिव। मैंने ये खुद पर्सनली एक एक्सपेरिमेंट करके देखा है अपने पेशेंट्स के साथ। एक पेशेंट को मैंने खोया सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उनका बेटा 24 घंटे उनके सामने सिर्फ यही बात कर रहा था, पापा पूरी कोशिश कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं हुआ इतने पैसे कमाने का, सारे पैसे लगा दिए, 4 लाख का भी इंजेक्शन नहीं मिल रहा। राइट? सो व्हाट इज द फादर ऑन दैट डेथ बेड गोइंग टू थिंक, ऑन दैट हॉस्पिटल बेड गोइंग टू थिंक कि इतना पैसा है फिर भी हमारे पूरी फैमिली मिलकर कुछ नहीं कर पा रही। ऑन द अदर हैंड, जिस पेशेंट के अंदर 1% भी इंप्रूवमेंट नहीं थी, उन पेशेंट्स के सामने हमने पर्सनली एज अ टीम ऑफ साइकोलॉजिस्ट गिनी चुनी 2-3 बातें बोली। हमने उनकी रिपोर्ट्स उनके सामने पढ़ी और सिर्फ इतना बोला, ट्रेमेंडस इंप्रूवमेंट, आप तो बहुत इंप्रूव कर गए हो, आपका हीमोग्लोबिन इंप्रूव हो गया है, आज आप डाइट में सिर्फ ये 5 चीजें खाइए और देखिए कि कल आप बहुत अच्छे हो जाएंगे। एंड जिनके अंदर बिल्कुल भी इंप्रूवमेंट नहीं थी ना, ट्रस्ट मी, just this positive thought कि मैं improve कर रही हूं, that lady was discharged within 10 days. इतना significant improvement उन्होंने दिखाया। तो ये सब कुछ सिर्फ हमारे दिमाग में है, सब कुछ सिर्फ हमारी साइकोलॉजी में है। इसीलिए ना तो नेगेटिव शब्दावली का इस्तेमाल करें। मैं ये नहीं कहती कि 24 घंटे पॉजिटिव होना पॉसिबल है किसी के लिए भी।
हमारा ड्यूटी है, हमें सबको पॉजिटिव करना होता है, बट हम भी सबको ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जहां नेगेटिव होना हो वहां प्लीज होइए। अगर घर में किसी की डेथ है तो आप उसके लिए पॉजिटिव नहीं सोच सकते, उस टाइम उस सिचुएशन के लिए पॉजिटिव नहीं सोच सकते। अगर आप ओवरली पॉजिटिव होते हैं तो वो भी एक प्रॉब्लम है जिसे हम टॉक्सिक पॉजिटिविटी कहते हैं। सो आई एम नॉट सेइंग कि आप 24 घंटे 365 दिन पॉजिटिव रहें, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एम्फसाइज हियर इज जितना भी पूरे दिन में हम बोल रहे हैं वो पॉजिटिव हो, हमारी जो कॉन्वर्सेशंस हैं वो पॉजिटिव हो। और वो पॉजिटिव कैसे होंगी? अगर हम कुछ पॉजिटिव सुनेंगे, अगर हम कुछ पॉजिटिव पढ़ेंगे, अगर हम कुछ पॉजिटिव देखेंगे। अगर ये तीनों चीजें नहीं होंगी तो हम पॉजिटिव नहीं हो सकते। अगर हम देख ही डेथ न्यूज रहे हैं 24 घंटे, हम देख ही ये रहे हैं कि एक न्यूज चैनल हमें बता रहा है कि कोविड की दवाई आ गई है, दूसरा बता रहा है कि जॉनसन की तीसरी वैक्सीन आ गई है, अब कौन सी ले? तो हम अपने रिश्तेदारों को फोन करके बार बार पूछ रहे हैं यार कौन सी वाली वैक्सीन लेनी चाहिए, और हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, वो तो ऐसी है, उसका तो साइड इफेक्ट इतना आया। We are again involving ourselves, our tone, our pitch, our volume, our vocabulary, everything is getting negative. हम बार बार जानबूझकर अनकॉन्शियसली भी और जानबूझकर भी नेगेटिविटी को इनवाइट कर रहे हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए इस पर्टिकुलर टाइम पे। बिकॉज अंडरस्टैंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप सबकी पावर से ऊपर भी एक पावर है। ये जो हो रहा है ये डेस्टिन था, ये होना था, ये हो रहा है। हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं? क्या हम यूनिवर्स में पॉजिटिव मैसेजेस भेज सकते हैं? क्या हम आपस में पॉजिटिवली बात कर कर एटलीस्ट अपना ऑरा पॉजिटिव बना सकते हैं, इफ नॉट किसी और की मदद? इस टाइम पे अगर आप अपनी मदद कर लो तो भी बहुत है, राइट? तीसरी सबसे बड़ी चीज जो हम गलत कर रहे हैं, किसी को किसी चीज की रिक्वायरमेंट है, अगर तो आपके पास कोई अच्छा फैक्ट है जो आप उसे दे सकते हो, आपके घर में सिलेंडर है और आप पहुंचा सकते हो, आपके घर में वो दवाई है या आप किसी फार्मेसी से वो दवाई लेकर उस इंसान के घर तक पहुंचा सकते हो, सो प्लीज करें। अगर नहीं तो प्लीज, ये मेरी आप सबसे एक विनम्र कोशिश है हाथ जोड़कर, जितने भी फॉरवर्ड मैसेजेस आते हैं उनको फॉरवर्ड ना करें। ये मैसेज फॉरवर्डिंग बहुत बड़ा ब्लंडर क्रिएट कर रही है आप लोगों के लिए ही, किसी और के लिए नहीं, आप लोगों के लिए ही। क्योंकि उस व्यक्ति की सिचुएशन सोचें जो हॉस्पिटल में है और जिसको एक दवाई चाहिए, उसके पास आपने ऐसे नंबर्स फॉरवर्ड करे, ऐसी लीड्स फॉरवर्ड करी जो आपने खुद ने वेरीफाई नहीं करी। और वो फॉरवर्ड करने से हुआ क्या? वो इंसान जो 5 मिनट के अंदर एक काम कर सकता था या किसी वैलिड रिसोर्स पे एक बार कॉल करके उसको वो चीज मिल सकती थी, उसने 3 घंटे क्या इलाज पोस्टपोन कराया सिर्फ ये वेरीफाई करने में कि पहले वो इस नंबर को फोन करेगा, उनसे पूछेगा, सेम स्क्रिप्ट को रिपीट करेगा और नेगेटिविटी लाएगा। आधे नंबर स्विच ऑफ जाएंगे, आधे नंबर नॉट रीचेबल जाएंगे, आधों के पास सामान नहीं मिलेगा, वो और होपलेस होगा, तो वो दूसरे को क्या होप देगा? तो आपने अच्छा करने की बजाय उस व्यक्ति का और बुरा किया। तो प्लीज, ये जितने भी फॉरवर्डेड मैसेजेस आपके पास आ रहे हैं, अगर आपने खुद पर्सनली वेरीफाई किया है तभी इसको आगे फॉरवर्ड करें, वरना इसको फॉरवर्ड ना करें। इससे बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फैल रही है। एंड नेगेटिविटी सिर्फ इसलिए नहीं होती, नेगेटिविटी का मतलब यहाँ सिर्फ ये नहीं है कि आपको नेगेटिव लग रहा है, दूसरे की सिचुएशन को वर्स्ट बनाना भी नेगेटिविटी है। सो किसी को इस टाइम अगर बहुत ज्यादा किसी मेडिसिन की जरूरत है और आप अगर प्रोवाइड करा सकते हैं, सिर्फ तभी उस चीज में घुसे, अदरवाइज हर व्यक्ति अपना ध्यान रख लेगा। आपका ध्यान रखने की कोशिश करना शायद उसके लिए और हानिकारक हो सकता है। सो प्लीज बी पर्टिकुलर इन दिस एस्पेक्ट एंड टेक इट वेरी वेरी सीरियसली। अपार्ट फ्रॉम दैट, coming to again how to keep yourself positive. How many of you here, आप लोग सब पहले कॉलेज जाते थे, आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन क्लासेस चलते हुए भी एक डिसिप्लिन्ड लाइफ रूटीन फॉलो कर रहे हैं? How many of you? सुबह नाश्ता कर कर, फैशन अप होकर, नहा धोकर,
जैसे कॉलेज में कपड़े पहन के जाते थे वैसे पहनकर बैठते हैं क्लासेस के लिए? नहीं मैम, ऐसा नहीं हो सकता क्यों, घर पे रहते हैं। ओके, बट बहुत सारे लोगों ने लिखा यस मैम, सो दैट मीन्स कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जो फॉलो करते हैं। झूठ बोला है मैम, झूठ। सर जस्ट बिकॉज आप नहीं करते डजंट मीन कि सब झूठ बोलते हैं। मैं इस टाइम आपको जैसे दिख रही हूँ, मैं 24 घंटे वैसे ही रहती हूँ। मैं अपना रूटीन एज इट इज फॉलो करती हूँ। हम नहीं मानते हैं मैम। हाँ, तो आप नहीं मानते। देखिए, नेगेटिविटी इससे भी बहुत ज्यादा आती है कि हम हर चीज को जनरलाइज कर देते हैं। अगर मैं ऐसा करता हूं, अगर मैंने आंख बंद करी, इसका मतलब ये नहीं है कि सामान सारा जो आपके सामने था वो उठ गया है या वहां से सामान गायब हो गया है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको दिखना बंद हो गया है। आपने आंख बंद की पर आपके घर वाले तो देख रहे हैं, सामान कैसे मैम गायब होगा वहां से। एग्जैक्टली माई पॉइंट बच्चा, वही मैं आपको समझा रही हूँ कि आप तैयार नहीं होते, इसका मतलब ये नहीं है कि जितनों ने यस लिखा है वो भी तैयार नहीं होते। तो आप अपनी अपनी बात करें, दूसरों को चैलेंज ना करें। हम गलती कहाँ करते हैं? जहां हम उंगली उठा देते हैं दूसरों के ऊपर। हम डॉक्टर्स पे उंगली उठा रहे हैं, हम इतने सारी फ्रेटर्निटीज पे उंगली उठा रहे हैं कि वो ऐसा नहीं करता, वो ऐसा नहीं करता, ये नहीं करती, वो नहीं करती। हम खुद क्या कर रहे हैं अपने लिए? हम सबको ये सोच सोचकर नेगेटिव और बना रहे हैं। सो आज से अगर हम एक प्रण भी लें, हम किसी के बारे में कुछ नहीं सोचेंगे, बस अपने बारे में पॉजिटिव सोचेंगे। हमें अपने हस्बैंड से भी कोई लेना देना नहीं है, बच्चों से भी कोई लेना देना नहीं है, घर वालों से भी कोई लेना देना नहीं है। हम एक डिसिप्लिन लाइफ व्यतीत करेंगे, एक अपना खुद का स्केड्यूल बनाएंगे, उसको फॉलो करेंगे। आप देखेंगे आपके खुद के माइंडसेट, आपके आउटलुक में, आपके बिहेवियर में आप बदलाव देखेंगे। सिर्फ एक व्यक्ति के चेंज होने से, खुद के, वो भी किसी और को चेंज नहीं करना। आप दुनिया को चेंज नहीं कर सकते। जितने लोग यहाँ ऐसे हैं जो एक्चुअली में रूटीन फॉलो करते हैं, उनकी लाइफ काफी एक्टिव होगी। अगर आप बेड पे लेट कर, चलते फिरते, उठते बैठते क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तो आप देखेंगे आपका ग्रेजुअली कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा, आप फोकस नहीं कर पाएंगे। और अगर यही आप एक फ्रेश माइंड के साथ जो रूटीन फॉलो करते हैं, रूटीन का अपने आप में बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। एक रूटीन फॉलो करना क्यों जरूरी है? ये ऑनलाइन सिस्टम क्यों इंडियंस को समझ नहीं आ रहा? वेस्टर्न कल्चर में तो है, ये बहुत सालों से है, बट हमारे यहाँ प्रथा है सुबह तैयार व्यार होकर बैठना, अपनी बॉडी को एनर्जाइज करना, इंफॉर्मेशन को ग्रास्प करना। ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए नहीं, आपके माइंडसेट के लिए नहीं, आपकी बुद्धि के लिए नहीं, आपकी बॉडी के लिए। ये आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, और आप ये सब कुछ ना करके अपनी बॉडी को भूखा रख रहे हैं। और ये भूख आपकी बॉडी, आपकी इम्यूनिटी वीक करके, आपको बीमार करके पूरा करती है, क्योंकि बॉडी अपना न्यूट्रिशन खुद एक्सट्रैक्ट कर लेती है, उसको जैसे भी करना हो। तो इनडायरेक्टली हो क्या रहा है? असर तो हम पे ही पड़ रहा है ना। इम्यूनिटी तो हमारी ही वीक हो रही है, एंशियस हो जाते हैं, जल्दी से डर जाते हैं, जल्दी से घबरा जाते हैं, नेगेटिव सोचने लग जाते हैं, ये हो गया तो क्या हो गया, वो होगा तो कैसे होगा। ये सब कुछ इसी वजह से होता है। अगर आप एक रूटीन फॉलो कर रहे हैं तो आपके पास टाइम ही नहीं है ये सब कुछ सोचने के लिए, क्योंकि 4-5 बजे तक तो कॉलेज ही होता है, 4-5 बजे तक तो यू आर नॉट अवेलेबल। लंच के टाइम पे लंच कर रहे हैं, डिनर के टाइम पे डिनर कर रहे हैं। So already you have distributed your time that you don't have time left for all these things. So negativity आने का स्कोप ही कम हो गया यहाँ पे। कहाँ से आएगी नेगेटिविटी? यस मैम। पर मैम एक वो भी तो होता है ना कि संडे और मंडे में कुछ डिफरेंट होते हैं मैम। जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि मंडे को कुछ अलग करना है, संडे को कुछ अलग करना है, तो वो कहते हैं ना कि हम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है, चाहे वो संडे को हो चाहे मंडे को। कि हम मंडे को तो हम वेल डेवलप, मतलब अच्छे से तैयार होके कॉलेज वगैरह जा सकते हैं, पर संडे को जब वही बारी जब संडे कहते हैं तो हम अभी सोच लेते हैं कि यार अगले दिन तो संडे है, तो आराम से लेट से सोएंगे, लेट से उठेंगे। तो संडे हफ्ते में एक ही दिन आता है, 365 दिन नहीं आता। और संडे को जो आपका बॉडी होता है, आपका माइंड होता है, उसका कंपैरिजन करना कभी मंडे की रूटीन के साथ, आपको बहुत डिफरेंस मिलेगा। आपको ऑटोमेटिकली ये सोचते हुए कि कल संडे है, आज रेस्ट करते हैं, बॉडी लूज हो जाती है,
बॉडी ऑटोमेटिकली आपको एक सिग्नल देने लग जाती है कि थकान महसूस करो, बॉडी लेजी हो जाएगी, आपका मन करेगा थोड़ी देर और सो जाते हैं। बट अगर यही मंडे है या आपका कोई एग्जाम है, ऐसा क्यों होता है कि एग्जाम आने से पहले तो बिल्कुल ही दिमाग हमारा इतना ज्यादा एक्टिव हो जाता है कि शायद हमें नींद भी नहीं आती। और ऐसा क्यों होता है कि अगर हमें पता हो कि संडे है तो सैटरडे को हम पूरा रात बैठ के वेब सीरीज देखते हैं, नेटफ्लिक्स या अमेजॉन प्राइम हमारा ऑन ही रहता है। दिस इज ऑल साइकोलॉजिकल, दिस इज ऑल प्योरली साइकोलॉजिकल, कुछ और इसमें लेना देना नहीं है, इट्स ऑल साइकोलॉजिकल। आप संडे को भी एक्टिव रह सकते हो अगर आप रूटीन को फॉलो करो और 7 दिन की रूटीन बनाओ तो। ओके, आई हैव रिसीव्ड अ मैसेज फ्रॉम भार्गवी पांड्या। We are quite known to immunity boosters. What question I have here is how to boost your mood. Your answer might be कि we should engage ourselves mentally in things we would like to do. But nowadays, keeping ourselves busy in things we are interested is okay for a day or two. Okay, very, very interesting question. Though out of the context of this, but I would love to respond to Bhargavi. See, हम generally क्या करते हैं? हम कोशिश करते हैं, जैसे इन्होंने अपने मैसेज में भी लिखा, हम कोशिश करते हैं कि नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, माइंड डाइवर्ट करो। माइंड डाइवर्ट कैसे करो? चलो थोड़ी सी कुकिंग कर लेते हैं, चलो थोड़ा सा खेल लेते हैं, चलो थोड़ी सी वॉक कर लेते हैं। यहां हम सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं? प्रॉब्लम थी माइंड में, थॉट्स कहाँ आए? माइंड में। हमने चेंज क्या किया? अपना बिहेवियर, अपनी बॉडी को मूव किया ना एक जगह से दूसरी जगह। कुकिंग करते समय, कपड़े धोते समय, बर्तन करते समय, पढ़ाई करते समय, कुछ भी हमने किया, हमारा दिमाग तो वहीं का वहीं है, हमारे थॉट्स तो वहीं के वहीं है, हमने सिर्फ अपनी बॉडी का पैटर्न चेंज कर दिया। रादर ये ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है जब आप अपनी बॉडी चेंज कर देते हो, क्योंकि बॉडी को क्लूज मिलते रहते हैं, हमारे ब्रेन को डिफरेंट क्लूज मिलते रहते हैं कि इन सिचुएशंस में भी वो ये वाला थॉट सोच सकता है। तो इसके लिए ज्यादा अच्छा होगा कि आप अपनी सेंस ऑर्गन्स, द 5 सेंस ऑर्गन्स यूज करते हुए उस पर्टिकुलर टाइम पे अपना माइंड डाइवर्ट करें, माइंड डाइवर्ट करें, बिहेवियर डाइवर्ट नहीं करें। नाउ कैसे? अगर आपको इस टाइम लग रहा है, एंड अगेन अगर आप ये 5-6 चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ ये कर लेते हैं, ऑटोमेटिकली आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, बिकॉज आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी एंड पॉजिटिव थॉट्स को इन्फ्लुएंस करके अपने नेचर में लेके आएंगे। पहला कंसेप्ट, immediately try to look around you for 5 things which are red in color. कोई भी ऐसी 5 चीजें जो लाल रंग की हैं। कलर आप हर दिन नया चूज कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। आज ब्लू देख लीजिए, कल येलो देख लीजिएगा। So move your eyes, be there but concentrate on the eyes and look for objects that are red in color. और आप इसको और इंटरेस्टिंग बना सकते हो। Maybe there are few photo frames around you. आप एक दूसरे से बात करते हुए एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो कि परसों रात को डिनर में क्या खाया था, वो जो फोटो फ्रेम लगा है उसमें XYZ पर्सन ने कौन से रंग का सूट पहना हुआ है। सो अचानक से किसी को ध्यान नहीं आएगा एंड माइंड आपका उन चीजों को सोचने में बिजी हो जाएगा और इस थॉट से डाइवर्ट हो जाएगा। दिस इज हाउ प्रोडक्टिवली यू कैन ऑल्टर योर स्टेट ऑफ माइंड। देन वेरी इंटरेस्टिंगली सिर्फ 2 आइस की क्यूब्स लो और अपने हाथ पे just start playing with those ice cubes. It will give you a sense of touch. It will help you divert your negative thoughts. Okay, then try to have some sort of aroma in your room. Lavender fragrance को काफी ज्यादा effective माना गया है to soothe the negative thoughts of your mind. तो आप लेवेंडर फ्रेग्रेंस को या कोई धूप अगरबत्ती, जो फ्रेग्रेंस आपको, कोई परफ्यूम पसंद है, उस परफ्यूम को अपने हाथ पे लगा लीजिए, या अगर हल्का सा उसको स्प्रे कर सकते हैं अपने आसपास तो वैसे स्प्रे कर लीजिए। आप देखेंगे आपका माइंड डाइवर्ट हो रहा है, आपके थॉट्स डाइवर्ट हो रहे हैं इन चीजों से। सो ट्राई टू यूज योर 5 सेंस ऑर्गन्स और योर 5 सेंसेस एट द टाइम व्हेन यू आर थिंकिंग नेगेटिव टू एक्टिवेट पॉजिटिविटी इनसाइड यू, विद इन यू एंड अमंगस्ट योर एनवायरमेंट. So I hope, Bhargavi, I'm able to answer what you are saying.
Yes, you're most welcome. Okay. मैम हाँ जी. बट यूजुअली सब लोग बोलते हैं कि अपनी बॉडी को ब्रेक दो, तो व्हाट डज इट मीन, मतलब ब्रेक देना? आपने बोला रूटीन फॉलो करो रेगुलरली, देन व्हाई एवरीवन सेज दैट जस्ट हैव अ ब्रेक? व्हाट डज इट मीन फॉर अस? ओके, सो आपने वो सुना है ना, हैव अ ब्रेक, हैव अ किट कैट? यस मैम. इट इज एज सिंपल एज दैट. ब्रेक बॉडी को देना है इन द सेंस, अगर आपका एक पीरियड 1 घंटे का है, आप उस 1 घंटे में क्लास को अटेंड करें, उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक लें और दोबारा से जो रूटीन है उसमें लग जाए. ठीक है? ये जो ब्रेक है ये आपके स्केड्यूल से ब्रेक नहीं है, ये आपने अपनी बॉडी को इतना रेस्ट देना है कि वो अगली चीज को रजिस्टर कर सके. से फॉर एग्जाम्पल, अब वो जो 2 लेक्चर्स के बीच में आपने 5 मिनट का 10 मिनट का ब्रेक लिया, उसमें व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक चेक नहीं करना है. ऑलरेडी आप इतना ज्यादा स्क्रीन के सामने हैं, तो हमें स्क्रीन टाइम अवॉइड करना है. तो आप उसमें पानी पी सकते हैं, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, बॉडी स्ट्रेच कर सकते हैं. जस्ट ट्राई टू स्ट्रेच योर बॉडी. उस टाइम पे खड़े हो जाइए, थोड़ी सी जंप कर लीजिए, 2-3 सीढ़ियां चढ़ के उतर जाइए. इस तरह की कोई चीजें कि बॉडी, बिकॉज अभी कोविड सिचुएशन में, जैसा भार्गवी ने भी कहा, कि अगर हम इंटरेस्ट एरियाज में भी इन्वेस्ट करते हैं अपना टाइम, अपना एफर्ट, तो भी हम बाहर तो जा नहीं सकते. तो हम ऐसा तो कर नहीं सकते कि हम साइकिलिंग करने चले जाएं थोड़ी देर शाम को, या हम कोई आउटडोर गेम्स खेल लें. बहुत कम पॉसिबल है, बहुत जगह पे लॉकडाउन लगा हुआ है और ये फीजिबल भी नहीं है. तो ऐसी सिचुएशंस में जितना आप घर रहते हुए ऑल्टरनेट सोच सकते हैं, आप उतनी चीजें करें और उस हिसाब से ब्रेक लें. उतना ब्रेक जितने में किटकैट खाई जाए. सो दैट इज व्हाट इट मीन्स कि आप बीच बीच में ब्रेक लेते रहें. और संडे, जस्ट कीप संडे फॉर योर ओन सेल्फ. फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें और उसके लिए भी रूटीन बनाएं कि क्या क्या कर सकते हैं उनके साथ. कितनी सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं. आप फैमिली गेम्स खेल सकते हैं, आप लूडो, कैरम, इंडोर, इतनी सारी गेम्स हैं जो आप फैमिली के साथ खेल सकते हैं. आप सवाल जवाब कर सकते हैं, आप डिस्कशंस कर सकते हैं, उनसे उनकी लाइफ के बारे में पूछ सकते हैं. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप और कर सकते हैं. बट एवरी डे कम से कम आपके पास 15 से 20 मिनट मिनिमम, कह रही हूं, ज्यादा जितना भी आप चाहें, आपके पास समय होना चाहिए अपने साथ बिताने के लिए, जो इस टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी है. हम हमेशा से, मतलब अगर आज हम 20-25 साल के होंगे, इवन द फैकल्टी मेंबर्स प्रोबेबली वुड अग्री टू माय स्टेटमेंट, हमेशा से अगर आप अपने दिल से पूछें, इस तरह के समय का हम इंतजार कर रहे थे. हम सबके पास एक चेकलिस्ट थी जिसमें 100 तरह की चीजें थी. जिस दिन समय मिलेगा हम यहाँ घूमने जाएंगे, जिस दिन समय मिलेगा हम ये किताब पढ़ेंगे, जिस दिन समय मिलेगा मैं एक रिसर्च पेपर लिखूंगा, जिस दिन समय मिलेगा मैं ये पेंडिंग काम करूंगा, जिस दिन समय मिलेगा मैं घर के इन कामों को समझने की, तरतीब से लगाने की कोशिश करूंगा. We had so many things to do. इतनी लंबी चौड़ी हमारी टू डू लिस्ट थी. और आज जब समय मिला है तो हम सोच नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे कि समय को यूटिलाइज कैसे करें. आज का समय हमें इतना खाली लग रहा है कि हम सिर्फ नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं और हमारे पास बहुत कुछ है करने के लिए. पहले हमें लगता था, हम अपने आप को क्रिटिसाइज करते थे कि माँ बाप के लिए टाइम नहीं मिल रहा, हम अपने माता पिता को टाइम नहीं दे पा रहे, हम अपने छोटे भाई बहन को टाइम नहीं दे पा रहे, हम अपने हस्बैंड को टाइम नहीं दे पा रहे, हम अपनी वाइफ को टाइम नहीं दे पा रहे, कि कॉलेज इतना ऑक्यूपाइड रखता है, XYZ प्रोफेशन हमारे को इतना ऑक्यूपाइड रखता है, इतना होमवर्क मिलता है, हम 24 घंटे असाइनमेंट्स में बिजी रहते हैं. इतना कुछ पहले भी हम उंगलियां उठाते थे, आज जब समय मिला है तो भी हम उंगलियां उठाते हैं. ये इंसान की फितरत ही ऐसी है. सो अब इतना सारा कुछ हो जाने के बाद तो हम समझ सकते हैं ना कि यहां से हम पॉजिटिविटी लेते हैं कि अब हमारे पास समय है. जिसने नहीं भी शुरू किया आज से, तो हम इस चीज को शुरू कर सकते हैं ना कि उस टू डू लिस्ट को दोबारा से लिखो, सुंदर तरीके से लिखो, रोज टिक करो कि अच्छा आज इस हफ्ते का ये टारगेट है, मुझे अपने घर का बजट बनाना है, मुझे आगे क्या करना है इस पे सोचना है. सो बहुत सारी लिस्ट हैं, 100 से ज्यादा की होगी ये चेकलिस्ट हमारी,
जो शायद इतने सालों से पूरी नहीं हुई है। हमें बच्चों के साथ समय बिताना था, हम नहीं बिता पाए। हमें बच्चों के लिए शायद अच्छी अच्छी किताबें खरीदनी थी, अब सब कुछ गूगल पे है, बैठिए पढ़िए तो सही उसके साथ। अपने सिबलिंग्स को पढ़ाना था, पढ़िए ना। इंटरनेट पे क्या नहीं है? हम इंटरनेट पे वेब सीरीज देखते हैं, क्या हम कुछ एजुकेशनल डाउनलोड नहीं कर सकते? क्या हम अपनी ग्रूमिंग के लिए कोई कोर्स नहीं कर सकते? लॉकडाउन ऑफर्स चल रहे हैं, 500 रुपए में 10 हजार वाले कोर्सेज मिल रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमें बहुत सुकून मिलता है ये मानते हुए कि पता ही नहीं चलता 3-3 घंटे न्यूज चैनल के सामने कब निकल जाते हैं। पता ही नहीं चलता कि हम गेम्स खेलने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि घर में भी किसी का ध्यान रखना है। पता ही नहीं चलता ये समय कैसे निकल गया। फिर भी पता चलता है कि ये 1 साल चला गया हाथ से। अगली वेव भी तीसरी आने वाली है, पर हम ये सोच रहे हैं कि बाहर क्या हो रहा है, हम अंदर की सफाई आज भी नहीं कर पा रहे। हम आज भी बाहर के बारे में फोकस करते हुए इतने नेगेटिव हो रहे हैं, और ये सिर्फ इसलिए नेगेटिव हो रहे हैं क्योंकि हम बाहर का सोच रहे हैं, हम अंदर का सोच ही नहीं रहे। हमने 1 साल व्यतीत कर दिया व्यर्थ, सिर्फ ये सोचते हुए कि बाहर सिचुएशन बहुत खराब है। अंदर की सिचुएशन तो ठीक कर सकते थे, 1 साल था, रिश्ते बना सकते थे, नए रिश्ते जोड़ सकते थे, रिश्तों में प्यार ला सकते थे, कड़वे रिश्तों को जोड़ सकते थे, बहुत सारी चीजें और कर सकते थे। हम इमोशंस को वैल्यूएबल बना सकते थे, और अभी भी बना सकते हैं। So there are a lot of things that you can do to keep yourself positive. मैंने तो बहुत छोटी बट बहुत गहरी चीजें बताई हैं। मैं आशा भी यही करती हूँ कि आप सब अगर इसमें से कुछ कुछ चीजें रोज सुबह तैयार होकर एक रिलीजियसली रूटीन बना लीजिए कि रोज सुबह तैयार होकर ही सिस्टम के सामने बैठना है। आप एक रूटीन जो कॉलेज में फॉलो करते थे, चाहे वो फैकल्टी हैं चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, उस रूटीन को कंटिन्यूड रखें। अपने खाने पीने का ध्यान रखें, एक हेल्दी डाइट लें, बहुत ज्यादा जरूरी है। रोज सुबह उठकर पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलें। पॉजिटिव एफर्मेशंस अपने आप को सिर्फ पॉजिटिव बोलना है। थैंक यू गॉड कि मैं इन सब चीजों से दूर हूँ। थैंक यू गॉड तूने मुझे आज का समय दिया कि मैं अपने अंदर ये बदलाव ला सकता हूँ। थैंक यू भगवान कि आज ये मौका मिला कि मैं शायद अपने माता पिता के किसी काम आ सकूं, अपने बच्चों के काम आ सकूं। इस तरह की कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, और अगर आपको लगता है आपको नहीं मिलती, गूगल पे ये भी अवेलेबल है। पॉजिटिव एफर्मेशंस फॉर हीलिंग, पॉजिटिव एफर्मेशंस फॉर कमिंग आउट ऑफ कोविड, कुछ भी टाइप करो, आपके पास 8 लाइन 10 लाइन 25 लाइन आ जाएंगी। जस्ट उनको रीड आउट करो रोज, क्योंकि ये मानना बहुत जरूरी है, जो आप बोलते हैं वही आपके विचार बनते हैं, जो आपके विचार होते हैं वही आपका स्वभाव बनता है। योर लैंग्वेज, योर थॉट्स एंड योर बॉडी बिहेवियर, ऑल 3 आर इंटरकनेक्टेड। आप सोचोगे बाहर नेगेटिविटी है तो नेगेटिविटी होगी, आपकी बॉडी भी वैसे ही रिस्पॉन्ड करेगी। छोटा सा बुखार आएगा, आप पैनिक हो जाओगे, एकदम से इम्यून सिस्टम वीक होगा और कहानी खत्म। बुखार आया, बट अगर ये सोचते हैं बुखार तो आता ही है, नॉर्मल है, देखते हैं, वेट करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, और चीजें सोचते हैं क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, लिस्ट आउट करें, पॉजिटिव सोचें। एटलीस्ट आप और कुछ नहीं तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, आप स्टीम लीजिए, गागल्स कीजिए, अपनी तरफ से तो कोशिश कीजिए पहले ठीक होने की, डॉक्टर के पास भागने की से पहले एटलीस्ट। सो please keep your thoughts positive, very very important. Please keep your speech positive, very very important. More than important, thoughts से ज्यादा important है अपनी speech को positive रखना। Okay, so we have this question, मैम मेरा एक सवाल है, फैमिली से दूर रहते हैं तो उनके बारे में लगातार टेंशन होती है, कुछ हुआ तो नहीं है, उनको कैसे हैंडल करना चाहिए इस थॉट को? महेश जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और आई थिंक बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा क्योंकि सब लॉकडाउन की वजह से कहीं ना कहीं फंस गए हैं और फैमिली से दूर हैं। देखिए, रिपीट ही होगा इसका आंसर भी, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, टेंशन लेने से क्या फैमिली बच जाएगी अगर उनको कोविड होना होगा? तो टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। टेंशन लेते हुए कहीं ना कहीं आपसे ये गलती जरूर हो जाएगी कि
आपकी टेंशन, बिकॉज आप उनके बच्चे हैं और वो आपकी इतनी सी फ्रीक्वेंसी, अगर आपकी आवाज की चेंज होगी तो भी उनको समझ में आ जाएगी। तो आपके टेंशन लेने से अगर आप 10% टेंशन लेंगे तो उनकी 110 होगी। सो सबसे पहली चीज, टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। अगर वहां सिचुएशन खराब होती भी है तो भी टेंशन से तो कुछ नहीं होगा। अगर आप वहां प्रेजेंट होंगे, आप अपने कर्म से कुछ कर पाएंगे, आप टेंशन लेने से कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज, टेंशन ना लें, इस बारे में ओवरथिंक ना करें, क्योंकि आप यूनिवर्स में एक गलत मैसेज भेज रहे हैं, कहीं वो बीमार ना हो जाएं। बार बार ये थॉट उन तक पहुंचेगा तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। सो आप ये मत सोचें, रादर रोज सुबह उठ के कहें थैंक यू भगवान, आज हमारा परिवार पूरा सुरक्षित है, थैंक यू गॉड फॉर कीपिंग देम सेफ। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, कीप टॉकिंग टू देम, एंड जितना आपने आज समझा उतना उनको भी समझाएं। उनको भी कहें कि वो न्यूज चैनल्स और ये सबसे दूर रहें, उनको भी कहें कि अपना खाना पीना सब अच्छा रखें और अपना ध्यान रखें। कोशिश करें जितनी ज्यादा वीडियो कॉल्स पे बात कर सकें, ताकि आप एक कनेक्ट महसूस करें, और एक समय निश्चित कर लें कि आपको पूरे दिन में इस समय, अगर आप उनके साथ होते तो ये खेलते या ये बात करते या ये डिस्कस करते, उस तरह की डिस्कशंस उनके साथ रेगुलर बेसिस पे करें। सेकेंड क्वेश्चन इज, इस लॉकडाउन में टाइम में बेस्ट इंडोर क्या एक्टिविटी क्या करनी चाहिए जिससे फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ सही रहे? ओके, मैं आपको ये कहूंगी कि क्योंकि मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा वीक हो रही है तो बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं कंसंट्रेशन में, अटेंशन में। तो अगर आपके पास कलर्स हैं तो नथिंग बेटर देन इट, जितना कलरिंग कर सकते हैं करिए। अगर आप डांस के शौकीन हैं, डांस से ज्यादा अच्छा वेंट आउट फ्रस्ट्रेशन का, नेगेटिव इमोशंस का नहीं हो सकता किसी और एक्टिविटी में। सो आप डांस कर सकते हैं, आप आर्ट एंड क्राफ्ट कर सकते हैं, आप कलरिंग कर सकते हैं। कलर्स बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप अनकॉन्शियसली कलर्स के इस्तेमाल से अपने अंदर की फीलिंग्स को बाहर बयान करते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता कि वो अंदर की फीलिंग्स खत्म हो जाती है नेगेटिव वाली। तो आप नॉर्मल अगर घर पे प्रिंटर है, जनरली मैं क्या करती हूँ, प्रिंट आउट्स ले लेती हूँ, कुछ मंडलास के, कुछ रंगोली डिजाइन्स, फ्लावर डिजाइन्स, कुछ भी ऐसे बेसिक कलर्स से उनको कलर करो, जस्ट क्लिक देयर फोटोग्राफ एंड कीप विद यू। और अगर हो सके तो एक दीवार पे उन सबको आप चिपका दीजिए, उनको देखते रहिए समय से समय, और आपको भी अच्छा लगेगा, पॉजिटिविटी आएगी उससे। और इंडोर आप क्या कर सकते हैं, आप बहुत सारी इंटरेस्टिंग गेम्स हैं जो खेल सकते हैं जिसमें स्क्रीन की भी जरूरत नहीं है। जीरो काटा खेल सकते हो जिसे टिक टैक टो कहते हैं। आप लूडो, कैरम इंडोर गेम्स हैं जो खेल सकते हो। आप वर्ड फॉर्मेशन खेल सकते हो। आप एक न्यूज़पेपर में से रैंडम, अगर 2-3 लोग हो आपस में, फ्रेंड्स हो, कजन्स हो या फैमिली के साथ हो, तो एक पैराग्राफ उठा लीजिए किसी भी न्यूज़पेपर का, उसमें से कोई वर्ड उठा लीजिए, दूसरे को वो न्यूज़पेपर पकड़ाइए, 10 सेकंड का टाइम दीजिए और बोलिए कि उस न्यूज़पेपर में से ये वर्ड ढूंढ के दिखाएं। आप उनको एरिया बता सकते हैं। तो इस तरीके से आप कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं, अटेंशन स्पैन बढ़ा सकते हैं अपना। सेकेंडली, आप लेटर कैंसलेशन कर सकते हैं। रोज किसी भी आर्टिकल का एक कॉलम ले लीजिए, अबाउट 10-15 लाइन्स, अपने आप को 5 मिनट का समय दीजिए और उसमें डेली बेसिस पे एक वॉवल कैंसिल कीजिए। और जब आप वॉवल कैंसिल कर रहे हैं तो याद रखिए आपने कोई भी अल्फाबेट छोड़ना नहीं है। तो ऐसा नहीं कि ए, सपोज हमने ए सोचा कि आज इस पैराग्राफ में से हम ए कैंसिल करेंगे, तो ऐसा नहीं ए थोड़ा सा यहाँ दिख गया, थोड़ा सा यहाँ दिख गया, थोड़ा सा यहाँ दिख गया, पूरी लाइन में ऐसे धीरे धीरे करते करते हम चलेंगे। और हर दिन का एक वॉवल उठा लीजिए, ए ई आई ओ यू, और मंडे को ए करना है, देन आई करना है, देन ओ करना है, ऐसे करके लेटर कैंसिलेशन कर सकते हैं। इससे आपका कॉग्निशन बहुत स्ट्रांग होगा। एंड ये जो चीज मैंने आपको बताई कि आप थॉट्स को डाइवर्ट करने के लिए अपने 5 सेंसेस का यूज कर सकते हैं, वो आप जनरली भी कर सकते हैं। उससे ओवरऑल आपका जो कॉग्निटिव प्रोसेस है, डिसीजन लेने का, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, चीजों को समझने का, माइंडफुल रहने का, कि आप उस सिचुएशन में अवेयर हैं, उस सिचुएशन में प्रेजेंट है, वो काफी एक्टिव हो जाता है। तो ये सारी चीजें आप छोटी छोटी ट्राई करके देख सकते हैं, और इसके काफी सारे ऑल्टरनेट्स आप अप्लाई करके देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम आई होप वी हैव टाइम टू टेक द क्वेश्चंस।
Yes, ma'am. ओके Yes, श्योर, ma'am. ठीक है, बिकॉज मैं नहीं चाहती किसी का क्वेश्चन अनआंसर्ड रह जाए. ओके मैम, मुझे थोड़े टाइम पहले कोरोना हुआ. नाउ आई फील वेरी वीक. जो चीजें मैं करती थी लाइक छोटे मोटे काम, वो नहीं हो पाते मुझसे. आई डोंट कॉन्सेंट्रेट इन माई स्टडीज ऑल्सो. हाउ कैन आई डील विद इट? सी, अगर कोविड पॉजिटिव थे तो आपको वीकनेस तकरीबन 3 से 4 महीने रहेगी. तो पहले तो सबसे पहले इस चीज को एक्सेप्ट कर लें कि ये कोई नई चीज नहीं हो रही आपके साथ. दिस इज समथिंग वेरी कॉमन, दिस इज अ साइड इफेक्ट, एंड ये चीज आपके साथ 4 मंथ्स रहने वाली है, मैक्सिमम 4 मंथ्स. ओके, अब ये 4 महीने रहनी है, तो 4 महीने का प्लान बनाना है अब हमने दिमाग में. पढ़ाई हमसे हो नहीं रही, छोटे मोटे काम हमसे नहीं हो रहे, तो हमें ये देखना है कि हमसे क्या हो रहा है. पहली चीज, एक्सरसाइज, वॉक, ब्रीदिंग जरूर करनी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर इज द कंडीशन. ठीक है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस अपनी फिजिकल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए करनी है. जनरली कुछ भी नहीं उठा लेना कि कोई भी योगासन करने लग गए या कुछ और. डॉक्टर के हिसाब से ध्यान में रखते हुए क्या पल्स रेट चल रहा है, क्या सिचुएशन है, क्या फिजिकली आपको बॉडी अलाउ करती है. बट मैं ये सजेस्ट करूंगी एवरी डे मॉर्निंग फॉर 15 मिनट्स एक्सरसाइज जरूर करनी है, बहुत ज्यादा जरूरी है. देन वी कम टू जो छोटे मोटे काम आपसे नहीं हो पा रहे. कोशिश करें हर दिन आप एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट सेट करें. 5 मिनट, 10 मिनट से शुरू करें. 10 मिनट आज आपको सिर्फ अपना रूम सेट करना है. सो जो चादर है वो तय लगानी है, सिराने तकिए एक जगह पे रखने हैं, बेडशीट ठीक करनी है. बस इतना काम करके आपको बैठ जाना है. सो आप एरियाज डिसाइड करें और उन एरियाज के लिए छोटा छोटा समय दें. हर दिन आप उसको 5 मिनट से बढ़ाएं. गेटिंग इट? आज अगर 5 मिनट का काम किया है, उस काम को कल 7 मिनट कर दीजिए, अगले दिन 10 मिनट कर दीजिए. ग्रेजुअली उस टाइम को बढ़ाना है. और अगर लगता है नहीं हो रहा या 7 मिनट ज्यादा हो गया है, तो 2-3 दिन तक 7 मिनट रखिए, 5 पे वापस मत जाइए. सो ग्रेजुअली आप अपनी लिस्ट बनाइए कि आपको कौन से काम रूटीन में करने होते हैं, और एवरी डे ग्रेजुअली 2-2, 3-3 मिनट बढ़ाते हुए इसको प्रोग्रेसिवली बढ़ाइए. एकदम से आप सोचेंगे कि रातों रात कोई मैजिक होगा, तबीयत ठीक हो जाएगी और आप सुपर विमेन बन जाएंगे और सारा काम कर लेंगे, पॉसिबल नहीं है. इट विल टेक गुड टाइम टू रिकवर. अच्छा खाना खाइए, चाहे फोर्स करके अपने आप को खाना पड़े, बट ट्राई टू हैव गुड डाइट. नारियल पानी, गुड फूड, फ्रूट्स इनटेक, ये सब इंक्रीज कर दीजिए. एंड जो डॉक्टर्स ने अगर मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रखी है, उनको बिना ड्रॉप किए, मूड का ध्यान रखते हुए उनको प्लीज टाइमली, रूटीनली लीजिए. एंड डू गेट वेल सून. एक्सक्यूज मी मैम. यस चिनल. मैम, मेरा ब्रदर है, उसके 25 डेज हो गए पर उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव ही आ रही है. उसके अंदर कुछ सिम्टम्स भी नहीं है, तो रीजन क्या है इसका? रीजन ये है बेटा, बहुत लोगों के साथ ऐसा हो रहा है. मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनका 4 बार रिपीट हुआ है ये चीज. इसका रीजन सिर्फ इतना है, 2 हो सकते हैं. फर्स्ट, किसी और लैब से टेस्ट करा लीजिए टू वेरीफाई कि लैब की रिपोर्ट तो गलत नहीं है. कई बार बिकॉज ऑफ द डर्थ ऑफ माइक्रोबायोलॉजिस्ट और समथिंग, कई बार रिपोर्ट एक्सचेंज हो जाती है. बहुत सारे और भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं टेक्निकल लेवल पे. तो रिपोर्ट्स किसी और डॉक्टर से वेरीफाई करा लीजिए, इन द सेंस कहीं और किसी और लैब से करवा के देख लीजिए. दूसरा, ये भी पॉसिबिलिटी है कि इन्फेक्शन बॉडी से नहीं गया है. सिम्टम ना आए कोई दिक्कत नहीं है. मैं भी कोविड पॉजिटिव थी, 2 बार कोविड पॉजिटिव निकली हूं. दोनों बार एसिम्प्टोमेटिक था, बट इन्फेक्शन था. ओके, क्योंकि वो जो सीटी लेवल एक रिपोर्ट के अंदर होता है, वो बताता है इन्फेक्शन था कि नहीं था. राइट? सो इन्फेक्शन था, यानी कि मेरे अंदर अगर जो इन्फेक्शन है, बिकॉज मेरी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, इस वजह से मुझे इम्पैक्ट नहीं किया, बट कीड़ा वो अंदर है अभी बॉडी के. तो इसलिए बेटर है कि आप या तो दोबारा टेस्ट करा लीजिए कहीं से, वरना उस इंसान का आइसोलेशन में रहना बहुत जरूरी है. क्योंकि जरूरी नहीं है आप सबका इम्यूनिटी लेवल सेम हो, आपसे इन्फेक्शन जरूर ट्रांसफर हो सकता है किसी और को.
मैम 3 बार टेस्ट कराया, वो पॉजिटिव ही आ रहा है। हाँ, तो यानी कि ये कंफर्म्ड है कि इन्फेक्शन है, द वायरस इज स्टिल देयर इन द बॉडी, इट हैजंट लेफ्ट द बॉडी येट। तो अगर डॉक्टर्स मेडिसिन बोलते हैं तो मेडिसिन कंटिन्यू करें, अगर सिर्फ आइसोलेशन बोलते हैं तो आइसोलेशन में स्टीम, गार्गल्स और ये जो बेसिक रूटीनली चीजें हैं वो लेते रहें, जिंक लेते रहें, आयरन लेते रहें, विटामिन सी लेते रहें। मैम हमारे डॉक्टर ने तो आइसोलेशन के लिए भी मना कर दिया। बट मैं पर्सनल लेवल पे सजेस्ट करूंगी कि आप आइसोलेशन में जरूर रहें। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। Okay, so next question says, ma'am, again a question like we have to visit some necessary places like grocery shops. So how to deal with the anxiety of visiting those places? Herein you can't do much. See, डरना एक बात है और मैं बार-बार मुझे एक तो इस चीज पे बड़ा ताजुब होता है जब लोग कहते हैं कि हमें डर लगता है, हमें डर लगता है। देखो, अगर आप शेर को देखते हो और कहते हो कि हमें डर लग रहा है पर भाग नहीं रहे हो, तो इसका मतलब आपको डर नहीं लग रहा। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ कहने में बहुत मजा आ रहा है कि मुझे डर लग रहा है सिचुएशन को देख के, पर या तो हमारा मास्क यहाँ टंगा हुआ होता है या हमारा मास्क नाक से नीचे होता है जब हम बाहर जाते हैं। So visiting all these places will create anxiety for sure because the situation outside is such. But अगर आपने precautions ली हुई हैं, आप या तो पूरी PPE किट पहन के जाइए, शील्ड लगा लीजिए, या डबल मास्क पहन के जाइए, हाथों में ग्लव्स पहन लीजिए, जैसे ही राशन ले लेते हैं वापस रख देते हैं, just throw away your gloves there and then, use sanitizers or wash your hands and continue with your routine. वापस आए, make sure that you have taken shower, you have removed those clothes जो आपने पहने हुए थे. That is the best you can do. इसके अलावा there is nothing else that you can do. Anxious होके कोई problem नहीं है, मतलब anxious होके ये solution नहीं है problem का. आपको इतना ध्यान रखना है what are the do's and the don'ts. आपने vegetables touch की, आपने सामान touch किया, आपने पैसे touch किए, किसी को इंसान को touch किया या आपके कपड़े हर जगह touch हुए. वापस आइए, बिना किसी को मिले, सबसे पहले just go to your room, take a quick shower, come back home, come back to your original life and do your routine work. Thank you, ma'am, for your precious suggestions. Ma'am, if we try to fix daily routine, then we can't try new type of things and creativity. Sir, there is ample of scope. Dinesh Kumar, I think, yeah. बहुत स्कोप है क्योंकि आप ये देखेंगे कि आपका ट्रैवल टाइम पूरा घट गया है. अगर आप ऐसा कहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी कि मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह पे हूँ. अगर आप फेसबुक पे, गूगल पे आस्था डिंगरा टाइप करेंगे तो यू विल बी एबल टू सी मी. आप मुझे एक बार अपना डेली रूटीन भेजना, चाहे फेसबुक के मैसेजेस में भेजना या इंस्टाग्राम में भेजना. मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी कि आपके पास कम से कम दिन में 5 से 6 घंटे सिर्फ अपने लिए होंगे. ये भी एक भ्रम है कि हम पूरा दिन कॉलेज में बिताते हैं और हमारे पास समय नहीं होता. हमारे पास बहुत समय होता है. अगर हम अपने खेलने के लिए, अगर हम व्हाट्सएप देखने के लिए और इंस्टाग्राम देखने के लिए समय निकाल सकते हैं तो हम अपने लिए समय बहुत आराम से निकाल सकते हैं. सॉरी टू इंटरप्ट यू आस्था. यस मैम. ज्योति चौधरी. यस मैम. एक्चुअली मैं चाह रही हूँ कि स्टूडेंट्स की क्वेरीज बहुत ज्यादा है और टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, तो आई जस्ट सजेस्ट कि शेयर योर फेसबुक पेज so that students can put their query or contact you on your Facebook page, और ताकि वो वहीं से आपसे अच्छे से अपनी सब प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेंगे और ज्यादा हो जाएगी. बिकॉज मुझे लग रहा है स्टूडेंट्स की बहुत ज्यादा क्वेरी, और हम समझ सकते हैं इस पैंडेमिक सिचुएशन में बच्चा चाह रहा है कि उसको सब तरह से क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिले, आंसर मिले, और आपको लगता है कि इतना स्वीट सी मैडम जवाब दे रही है तो वो रोक ही नहीं पा रहे अपने आप को. कि मैं इतने सारे आंसर्स देती जाऊं, हमारे पास इतना टाइम है. कोई प्रॉब्लम नहीं है आंसर्स देने में. तो जस्ट प्लीज शेयर योर फेसबुक पेज. आप स्टूडेंट से वो कर सकते हैं ताकि वो उस पर भी आपसे कांटेक्ट करते रहेंगे. और स्टूडेंट्स के लिए डेफिनेटली मैं एज ए हेड डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री ये कहना चाहूंगी कि नो डाउट हम मैडम को रेगुलर बुलाते रहेंगे, और जब कभी भी आपको इस तरह की जरूरत होगी, नहीं वी नीड सम हेल्प फ्रॉम
सच टाइप ऑफ हेल्प की हमको मेंटल कुछ चाहिए तो स्टूडेंट्स आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिए और मैडम से आप चाहे जब बात कर सकेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बट आई थिंक एक दो क्वेश्चन का है, मैम आंसर दे दीजिए आस्था आप, और उसके बाद इसको क्लोज करते हैं, ठीक है? श्योर, डेफिनेटली। मेरा फेसबुक पेज है साइकोलॉजिस्ट आस्था, मैं इंस्टाग्राम पे भी साइकोलॉजिस्ट_आस्था के नाम से हूँ। किसी को ना भी मिलूं तो गूगल पे सिर्फ आस्था ढींगरा टाइप करना, आपको मेरी पूरी प्रोफाइल दिख जाएंगी। जितने क्वेश्चंस आप पूछ रहे हो मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे बहुत सारी वीडियोस हैं जो मैंने हाल ही में पिछले 1 साल से रिकॉर्ड करके डिफरेंट वेबिनार्स की डाली हुई हैं। आपको सब इंफॉर्मेशन वहां से मिल जाएगी। कुछ और भी पूछना हो तो आप मुझे वहां पर मैसेजेस ड्रॉप कर सकते हैं। आई एम देयर टू आंसर ऑल द क्वेरीज। Okay, let me take the last question. Thanks for this amazing. This was really. I think questions खत्म हो गए हैं। या मैम अब तो थैंक यू फीडबैक चल रहा है मैम। दे आर सो ओवरवेल्म्ड। बच्चे बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हो गए हैं आपके टॉक से। उनको लग रहा है बस कोरोना यही खत्म हो जाएगा। कोरोना नहीं है मैम, कोरोना खत्म हो चुका है। कोरोना दिमाग में है, उसको बाहर से निकाल दो। नहीं मैम, बच्चे बहुत ज्यादा मोटिवेट हो गए हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज ओके। Everything is okay. I think ये takeaway होना चाहिए इस लेक्चर का, that everything is okay. It's just there in our mind. Please don't worsen the situation outside by creating more anxiety. अपने आप को ठीक रखें, सिचुएशन ठीक हो जाएगी। यस मैम। तो आई थिंक क्वेश्चनर सेशन और फीडबैक सेशन मेरे हिसाब से कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि स्टूडेंट्स ने काफी क्वेश्चंस पूछ लिए और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से मैम आपने उनका जवाब दिया है। सो योर टॉक इज रियली वेरी माइंड ब्लोइंग एंड वर्थ ब्रेनस्टॉर्मिंग। सो मैम अब मतलब बच्चों ने इतना ज्यादा थैंक यू कर दिया है, इतना नाइस टॉक, मुझे लग रहा है शायद क्या कहूँ, मतलब मैं फिर भी मैं आपको एक थैंक्स, एक जो अपना एक प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हुए कुछ मैं जो आपकी लेक्चर से कुछ मैंने जो क्या कैसे कंक्लूड किया है उसको मैं कह सकती हूँ कि मैडम ने जो कोविड में अभी जो नेगेटिविटी जो सभी में है, इवन कभी कभी मैं एक टीचर हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, इवन इस पैंडेमिक में मैं रोज क्लास लेती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों से शायद डेली मैं कांटेक्ट करती हूँ तो उनसे कुछ ना कुछ बात होती है तो मुझे एक पॉजिटिविटी मिलती है। क्योंकि मैं अपने दोस्त बच्चों से सिर्फ पूरे दिन बात करूँ तो वो भी सही नहीं है, क्योंकि और भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनसे मुझे इंटरेक्ट करना चाहिए। तो शायद मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो आज इसीलिए ज्वाइन किया उन्होंने, क्योंकि वो रोज मुझसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उनको पता है कि कुछ तो अच्छा होगा डेफिनेटली मैम ने करवाया है। तो सो थैंक यू सो मच मैम, आपने डेफिनेटली बहुत अच्छा सा बताया है कि कैसे हम इम्यूनिटी को अपनी बूस्ट करें, कैसे एंजाइटी को ओवरकम करें, और नेगेटिव न्यूज को ही आपने बहुत ही अच्छा बताया कि जो आप न्यूज़पेपर में या आपकी न्यूज चैनल्स हैं जो नेगेटिविटी वाली न्यूज बता रहे हैं उनको देखें, बट बहुत शॉर्ट में, उनको बहुत डिटेल में ना देखें, क्योंकि उससे हमें डेफिनेटली कोई फायदा नहीं होने वाला है। इंस्टेड हम न्यूज़पेपर में जो अच्छी अच्छी स्टोरीज आती है या क्विजेज आती है उनको सॉल्व करें, तो आई थिंक दे विल बी वंडरफुल फॉर अस। एंड जो की तरफ से मैम को अवार्ड दिलाना है, इन मैम को। कौन सी मैम को? आस्था मैम को? ये अभी मैम हमको दे रहे थे ना ये गाइडलाइन। हाँ बिल्कुल दिलवाएंगे बेटा, अभी कोविड खत्म होने दो, डेफिनेटली दिलवाएंगे मैम को। ओके, मैम का सपोर्ट करेंगे मैम हम। बिल्कुल बेटा। और आपने जो एक बताया है कि चेंज योर शेड्यूल, ये भी बहुत अच्छी चीज बताई है कि यदि आप किसी चीज से बोर हो रहे हैं तो डेफिनेटली उसको इम्प्रूव करें, क्योंकि हम एक ही पैटर्न को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली वी गेट बोर्ड। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी मैम आपकी, कि स्पीच शुड बी पॉजिटिव, thought should be positive but speech should be positive, because there are so many people around you who always says negative things. तो आपकी स्पीच पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि उससे आपको भी एनर्जी मिलती है और सामने वाले को भी बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है। सो थैंक यू सो मच मैम। अभी आप लोग लीव ना करें, वी विल कंक्लूड आवर सेशन विद आवर नेशनल एंथम। सो प्लीज अपनी प्लेस पे खड़े हो जाएं सभी लोग, और हम नेशनल एंथम करके फिर फिनिश करेंगे। हाँ बेटा बोलो। मैम हमारी एक मैम से रिक्वेस्ट है कि एक हमारी क्लास ले। कौन सी मैम से बेटा? ये मैम है, क्या नाम है इनका? आस्था मैम। हाँ बेटा इन फ्यूचर जरूर आपके लेक्चर्स करवाएंगे, लेकिन आज के लिए अभी हम इसको वाइंड अप करेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। सो प्लीज आप सभी लोग अपने अपने जगह पे स्टैंड अप हो जाएं और से नेशनल एंथम, देन उसके बाद ये मीट ओवर हो जाएगी।
शिखा मैम आप म्यूट पे चले गए शायद. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष माने गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय. जैन मैम. So finally, I would like to thank our speaker, Asa Dhingra ma'am, our respected Dean, Professor G.S. Rathore sir, our HOD ma'am, Dr. Jyoti Chaudhary ma'am, and my faculty members, Dr. Chetna Mehta, Dr. Neetu Kumari, Dr. Dinesh Kumar Yadav, Dr. Tarun, Dr. Lokesh, Dr. Kiran, Dr. Rama, Dr. Gangotri, and so many more because we have a very big family in our chemistry department. So मैं कुछ के नाम skip कर रही हूँ. So thank you so much and our loving students जिन्होंने पूरा टाइम इस सेशन को ज्वाइन रखा. और मैम सबसे अच्छी बात यह है कि एक भी स्टूडेंट ने स्किप नहीं किया. अराउंड 85 to 90 लोगों ने ज्वाइन कर रखा था और कोई भी लेफ्ट नहीं हुआ. मींस द सेशन इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग. थैंक यू सो मच मैम. Okay. Thank you, Asta. आपका भी लेक्चर बहुत अच्छा था, बहुत इन्फॉर्मेटिव था, वेरी इम्प्रेसिव. थैंक यू सो मच. Thank you sir. Thank you so much. It's an honor. Thank you. So shall we leave ma'am? Yes ma'am. Yes, yes, Sure please ma'am. let. Okay. Thank you so much.